Artillery Gangster. विवेक जी को हम सब हीरो के रूप में जानते हैं, देश इनको स्टार मानता है, सुपर स्टार मानता है, लेकिन हम में से कौन ऐसा है जो ये जानता है कि विवेक जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया इस देश के लिए। ये भी आज ठीक से मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन निश्चित रूप से मैं यहाँ जो भी बहुत बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी फिल्मी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं और कुछ उद्योगपति हैं, सबसे मेरा आग्रह है विवेक जी का ये नया रूप जो आज मैंने देखा है इस फंक्शन के पहले के रूप में, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि देश के आने वाले भविष्य परिवर्तन में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका हो। और आज इस अवसर पर हमारे राज्य यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कोई डिग्री नहीं है, एक सम्मान है। सम्मान है इनकी सर्विस का, सम्मान है इनके जो काम उन्होंने किए हैं और एक जिम्मेवारी है आने वाले दिनों में ये और बेहतर समाज के लिए करें। इसके अलावा मैं इसका Hello friends, welcome to Sahara Adhikar News Channel. Today we are at Grand Hyatt Hotel with the eminent scientist Dr. Madhu Krishan ji, where he has honored Bollywood film star Vivek Oberoi ji and many eminent personalities. Sir, welcome to Sahara Adhikar News Channel. How was the program today? You have honored many film stars including Vivek Oberoi. Thank you very much. It's a great privilege for me that whenever I get chance to come to my beloved country India, I don't miss it. And secondly, whenever I get chance to come to Mumbai, so it's a great pleasure for me to come to Mumbai. And today, as already have mentioned, that many celebrities and many renowned people like Vivek Oberoi and the future Prime Minister of India, she herself has claimed, because of this significant day, that is International Women's Day, it is very significant that we are getting a future Prime Minister of India, our Madam Kadri ji. So as already have demonstrated earlier, that we have to become the peace ambassador. We have come from a different ethnic background, come from a different language speaking people, also from different religions. Human beings are dividing human beings. So as a peace ambassador, I just would like to demonstrate only a few things as I am meeting up for the first time. So the first step, can you give me a hand? The first step is we have to be united. Because our Creator God is same. Only one God who has created the sun, who has created the moon, who has created even oxygen, the light, everything for the same for every human being. Without any discrimination. Okay, none of us can say that water, when the rain is there, the rain should come to my religious people first. None of us say that I should drink the water first. It is for everybody. So first of all, we have to be united in the first step. We have to be united by mind, by our heart, by our soul. First step. The second step, we have to take this message, breaking the wall of discrimination, breaking the wall of all kind of boundaries, break it, and message of the global peace, we have to fly like a dove, like a pigeon to the whole world. This is the message we have to spread to the whole world. I have come from United States of America. As already my clipping was there, I became the first ever Indian to receive Lifetime Achievement Award from Barack Obama. But when it was declared in the year 2016 in the White House, I, as Ambassador of America, holding diplomatic passport, I refused to take that award in White House. I just humbly requested Barack Obama, the then President of US, please honor me in my India, in my country India. I knew it is not possible. But then Barack Obama was so kind, the then President of US, he has sent his High Commissioner, and it was honored to me, the Lifetime Achievement was honored to me for my work for 30 years in 120 countries in the year 2016.
So I love my India so much because my grandfather was also a freedom fighter who was sent to Andaman Nicobar Island jail, in cellular jail, in the year 1901. I understand the value of freedom. So this is my passion, that all of us should be united together, and India has got a lot of potentials, huge potentials in all ways, in all resources, even the human resources, and when we join together, we will make our India very sustainable, developed, and a strong country in future, in the coming days. That is my message for the whole world, for the whole people. Especially on this eve of the International Women's Day, we all women have to play 50%, not 30%. 50% they will play seat in the parliament because of the right of equality. The Constitution of India is giving right of equality. So they should claim 50% in all. I'm happy that nowadays our women are pilots, women are engineers, women are doing much better work. Through your support, ma'am, now I think our women is doing better. Thank you. I request you to do one thing, because we are promoting Indian culture. हम सबका मैसेज मैं नहीं चाहती कि हम लेवल पे ना चलें। जिन लोगों को हम लोग नहीं समझा पाते, कुछ ऐसा भी हिंदुस्तान में एक तबका है जहाँ पर इंग्लिश नहीं समझ में आती। एक्चुअली मैं इसी चीज़ पर काम कर रही हूँ, मैं अपनी मातृभाषा के लिए भी काम कर रही हूँ। तो आप हिंदी में एक मैसेज दें जो वुमेंस के लिए, हिंदुस्तान की औरतों के लिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और हम थोड़ा हिंदी में बात करें, अगर हो सकता है हम शुरुआत करें तो आगे भी इस चीज़ को हम प्रमोट कर पाएँ, बिकॉज हमारी भाषा भी बहुत महान है। जैसे जरूरी, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत साल से हमारा टच में नहीं है, और मेरा बैकग्राउंड तमिल बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, ओरिजिनली फ्रॉम दैट प्लेस, तो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी मैं ये वुमेंस डे जो है उनके बारे में कहने के लिए चाहता हूँ। हमारे भारत का एक ऐसा स्त्री जैसा कल्पना चावला जो इंडिया की थी और इतना बड़ा नाम उसने कमाया। आज भी जो दूसरे विलियम्स हैं वो भी इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन भारत अमेरिका देश में उन्होंने इतना बड़ा नाम दिया है। उसी तरह हमारे भारत के बहुत सारे जो है जो जिन्होंने अपना सौभाग्य, अपना क्या उसे कॉपरेशन दिया, जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में, मुझे मालूम है उनका नाम नहीं है, लेकिन उन सबको भी हम लोग याद करेंगे। वे लोग जो हमारे भारत को बनाने के लिए अपना कंधा से कंधा दिए, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो कोई भी जो इस प्रकार से अपना साथ दिए हैं हमारे भारत को मजबूत बनाने के लिए। हम उन सभी स्त्रियों का नमन करते हैं और हम ये हृदय से कामना करते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि हमारा भारत, जो सपना हमारे अम्बेडकर जी ने देखा था, जो सपना हमारे गांधी जी ने देखे थे कि हमारे भारत में सबको समानता का अधिकार हो, स्त्री और पुरुष सबको एक समानता का अधिकार जब तक ना मिले, हम सभी जन संघर्ष करते रहना है और प्यार से लोगों को समझाते हुए अपना पोजीशन को खुद भी लेना है, अपना नारी भी आगे आते हुए ये पोजीशन को हम लोग खुद लेना है। साथ ही साथ ये भी है कि भारत को तो हम मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन पूरे भारत को विश्व में एक ऐसा एक ऊंचा कंट्री बना दे ताकि पूरे वर्ल्ड के लोग देखें निगाह से। क्योंकि जब मैं 30 साल पहले जब अमेरिका में कुछ था तो भारत की थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री मुझे एक गाली की तरह लगता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन अब हमें खुशी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैडम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अभी मैराथन में आप दौड़ने वाली हो, तो हमारी जो महिला है, जो हमारी भारत की महिला है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी? क्योंकि हमारे भारत में झांसी की रानी जैसी, जीजा माता जैसी और महात्मा फुले जैसे लोग हमारे देश में आके अपनी संस्कृति की एक छवि छोड़ गए, तो आप कौन सी छवि छोड़ने वाली हो? मैं सिर्फ आज
अपनी अलग अलग जगह छोड़कर भारत में देश मैं कल जैसा आपने कहा मैराथन की दौड़ में दौड़ने वाली हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक दौड़ में दौड़ने वाली हूँ, लेकिन स्त्री एक वुमन हमेशा लाइफ की दौड़ में आगे रहती है। और मेरी छवि सिर्फ इतनी होगी कि वो जो वुमन है जिनके पीछे कोई नहीं खड़ा होता है, जिनकी सपोर्ट कोई नहीं करता है, उन लोगों के साथ खड़ा होना, उनके कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना, उनको इंसाफ दिलाना, उनको लड़ना सिखाना। बिकॉज हम जब भी बात करते हैं भारत की, हम बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति भी एक वुमन है। जैसे वुमन प्रकृति है, उसके साथ छेड़छाड़ी तो कोरोना जैसी महामारी है। मैं ये चाहती हूँ कि अन्याय के खिलाफ हम सब मिलकर एक समाज बनकर, बिकॉज 50% वुमेन्स है हमारा भारत में, 50% जो अगर हम काउंट करेंगे तो हमारी जो आबादी है वो वुमेन्स की है 0 से लेकर 75 ईयर तक। तो मैं ये चाहती हूँ कि वुमेन्स को एक पावर मिले। उसमें से 50% वुमेन तो अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है, लेकिन 50% अभी हाल ही में एक दुखदायी हादसा हुआ जो हम सब जानते आ रही बात। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिन वुमेन्स को पावर नहीं है, जिनको लड़ना नहीं आता, मैं उनको लड़ना सिखाना चाहती हूँ और हर एक लड़की को सानिया बनाना चाहती हूँ, ताकि वो अपने अधिकार के लिए, अपने इंसाफ के लिए फाइट कर पाए। मैडम, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 18 NGO के साथ आप जुड़ी हुई हो और आप सामाजिक काफ़ी अच्छे कार्य करती हो और समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हो। इसके बारे में क्या कहना चाहोगी आप? मैं अभी 18 NGOs के साथ जुड़ी हूँ, जहाँ पर एड्स से पीड़ित बच्चों के लिए कार्य करती हूँ, जो अनाथ बच्चे उनके लिए कार्य करती हूँ, जो वुमेन्स हैं, जो अकेली हैं, जो दिव्यांग औरतें हैं, जो एजेड वुमेन्स हैं, जो अलग अलग तरह के हमारे NGOs के काम करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि 18,000 NGOs में तब्दील हो जाए और मैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड वाइड एक इंसानियत के लिए काम कर पाऊँ, क्योंकि